and heartiest welcome in this online webinar on procrastination. So, first of all, I would like to deliberate upon the meaning of procrastination for the students as well as our delegates of this webinar. Actually, this term seems to be very tough when we're talking about over here. Actually, the meaning of procrastination is the negative consequences of delay in work. This is the main crux of this seminar or this webinar. So, further, I would like to tell you about somewhat regarding the resource persons of the day. We do have a very versatile personality who would be deliberating upon this issue. Dr. Hardeep Kaur, she is HOD, Department of Psychology, Mata Gujri College, Fatehgarh Sahib, and her area of specialization is experimental psychology and cognitive psychology. She has 9 publications, 10 workshops, 11 paper presentations, and so many other achievements. So we heartily welcome Dr. Hardeep Kaur to this online webinar. Thank you, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Secondly, thank you so much. Welcome. Secondly, we have Mr. Rahul Vohra ji. He is young professional officer, Ministry of Employment, Government of India, Model Career Center, Rajsi, Jammu and Kashmir. Earlier, he has been in academics where he contributed a lot towards academics. His total research publications are 7. Besides this, he has vast technical expertise in computer-related languages. So we also welcome Mr. Rahul Vohra. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. I want to provide some information to you about our college. Our college is very premier institution, accredited by NAAC, and we have so many courses running over here. So I feel privileged that Honorable Principal Madam has entrusted me with this responsibility to be moderator of this online webinar. So in the future, I also expect such type of cooperation from Mr. Rahul Vohra ji. He has been very nice personality, and we have both worked collaboratively for a long time since back. So now I invite, not wasting any more time, Dr. Hardeep Kaur ji to deliberate upon the issue of procrastination, which in layman's language means that consequences of delaying work or the negative consequences of delaying work. Because since our childhood, we are given the importance, we are provided the importance of punctuality. So punctuality pays us throughout our life. So personally, I also feel whatever we do in life, where we are, we should always be punctual. So this quality would inculcate a sense of responsibility amongst us. Whether we start from our family, we go to the institutions, we go to the country. Those who are running the families, institutions, and the country, if they are punctual in their duties, our motherland, भारत जिसे हम कहते हैं, ये कभी भी पीछे नहीं रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो सभी बच्चों का भी मैं यहाँ पे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी बच्चों का यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे कोलीग्स का फिर एक बार से हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल मैडम का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। नाउ आई इनवाइट none other than Dr. Hardeep Kaur ji to deliberate over this issue. Thanks a lot. Thank you, sir. Thanks, प्रिंसिपल मैम एंड गोपाल सर, आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और
जो हम आगे काम करते आए हैं मिलके आगे भी करते रहेंगे। और बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। हरदीप मैम प्लीज कंटिन्यू। Thank you, sir. Thank you, ma'am and sir. Both of you. Thank you so much. Should, जी मैम, जी मैम। before we start, am I audible, sir? Before we start, I would like to pay Yes, my you are gratitude audible. to our principal, ma'am. Gopal Krishan and Mr. Rahul Vora webinar, and I hope students will learn from this lecture today. Should I start now? Should I start with the presentation? यस मैम। Yes, sure. Okay. Before we start, I would like to ask you 3 questions. नहीं करेंगे, कल करेंगे. I will do it tomorrow. I will do it tomorrow. And when I have more time, then I will do it. Excuses. Behavior. Know this task is very important, but even then we used to procrastinate it. We give importance to less important tasks instead of high importance tasks. So it is an act. And it's only why learned here because you have from there you have learned this behavior, and this is modeled behavior, and you imitate the behavior of other person. You are doing postpone the and with less never do that work. So these are the two situations, and you always mingle in, you're always there in a procrastination cycle. आप रोटेट करते रहते हैं इस procrastination cycle में ही करना है, या से पहले आपको असाइनमेंट देनी है, या आपको प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करना है, या आपको रिपोर्ट देनी है. आप क्या करोगे? यू विल से आई विल नॉट डू इट टुडे, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मैं कल कर लूंगा. ऐसे करके आप इस साइकिल में ही फंस जाते हैं. जो होता है वो क्या करता है, वो ज्यादा हमें इंपैक्ट करता है नेगेटिव सेंस में. प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग. स्ट्रेटेजिक डिले हम करते हैं किसी काम का, उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन के ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ पे हो या मेंटल हेल्थ पे हो. पर उससे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के. व्हाट आर द रीजंस? सबसे पहला रीजन है फियर ऑफ Procrastination is due to subconscious fear of failure. That I will not do this work. I will not be able to complete this work. I am a failure. I am a loser.
You have such a negative self-talk with yourself that you have a subconscious fear of failure. And self-doubt create a low self-confidence and low self-esteem in you. Don't only because you have a fear of failure कि मैं ये करूंगा तो फेल हो जाऊंगा. अभी किया भी नहीं है, लेकिन पहले ही अगर हमने सोच लिया कि हम फेल हो जाएंगे तो हम कभी भी उस टास्क को स्टार्ट ही नहीं करते. मिस्टेक्स कर दूंगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा. मतलब पहले ही आपने फेलियर के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन कर लिया. अभी किया भी नहीं और पहले ही इमेजिन कर लो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो फेलियर के बाद आते हैं. फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट फिर भी हम क्या करते हैं, मैंने काम करना ही नहीं करना, मैं फेल हो जाऊंगा और मैं क्या करूंगा अगर मैं फेल हो गया. और ये सोच के you are facing at that time anxiety and stress, and anxiety and stress will lead to more procrastination. Second is poor planning ability. हम प्लानिंग बहुत करते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, लेकिन we don't stick to our planning. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि पुअर टाइम मैनेजमेंट होती है, पुअर प्लानिंग एबिलिटी होती है, दे यूज टू प्रोक्रेस्टिनेट मोर. बिकॉज प्लानिंग, लेकिन उसको अप्लाई ना करना प्लानिंग को, उससे क्या होता है कि टास्क जो है हमारा, ना हमने शेड्यूल क्रिएट किया, ना हमने देखा कि हमने कैसे करना है, हमने सीधा ही उसको क्या कर दिया. प्लानिंग एबिलिटी पूर्ण होने की वजह से ना तो लिस्ट बनाई, ना हमने उस पर वर्क किया, और उससे क्या हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन करनी हमने शुरू कर दी. इनडिसिजननेस हो जाती है जब हम प्लानिंग नहीं करते, पता ही नहीं चलता वेयर टू स्टार्ट. इतने सारे टास्क हैं, टास्क पहले करें, और इसके क्या करते हैं, वो वाला टास्क चूज कर लेते हैं जो टास्क हमारे लिए है, वो हमें इंजॉयमेंट है हमारे लिए. हम वी आर नॉट क्लियर अबाउट आवर गोल्स, वी आर नॉट क्लियर अबाउट आवर ऑब्जेक्टिव, वी आर सो डिसऑर्गेनाइज्ड and we are unable to decide which task we will start or which task we will avoid. इतने सारे टास्क होते हैं, हम कंफ्लिक्टिव सिचुएशन में आ जाते हैं और हम नहीं डिसाइड कर पाते, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ वी आर डिसऑर्गेनाइज्ड. वी नेवर डू प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, वी आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन्ड. Another reason would be perfectionism. It is a personality trait which is linked with the procrastination. Perfectionism वाले कैसे सोचते हैं, all or nothing thinking. All or nothing मतलब या तो परफेक्ट होगा या नहीं होगा. I want everything 100% perfect. For example, अगर इन्होंने कोई काम शुरू करना है, suppose somebody is writing a book, बट उन्होंने बुक लिखने के टाइम पे ये देखा कि हर एक लाइन, हर एक वर्ड जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, 100% परफेक्ट होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ही हो. बिकॉज ऑफ दैट थिंग वो क्या करते हैं, अपनी बुक को कंप्लीट ही नहीं करते. अब पर जो परफेक्शनिज्म है ये 3 तरह का होता है. सेल्फ ओरिएंटेड मतलब जो हमने खुद के लिए क्रिएट किया, या हमने खुद के लिए कोई इंटरनल स्टैंडर्ड्स हमारे हैं जो हम कहते हैं कि उसको मेंटेन होगा तभी हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. सेकेंड वन इज अदर्स में हमारे फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, बिकॉज वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसलिए सोच लेते हैं कि मुझे परफेक्ट ही करना है, मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगा. They have very high expectations, very high standards. इन्होंने अपने लिए बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसको हम ये कहते हैं अनरियलिस्टिक. And they have all or nothing approach in their life. They are very afraid of making mistakes. ये मिस्टेक्स नहीं करना चाहते, इसीलिए they don't try to act or they don't take any action. And socially also they are, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे तो परफेक्ट करना है. परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता, लेकिन ये यही सोचते हैं, ये अपने आप को पैरालाइज कर देते हैं कि परफेक्ट टाइम आएगा, मैं तब स्टार्ट करूंगी. फॉर एग्जांपल कई लोग तो इस तरह के भी होते हैं जो फैमिली के जो हमारे वर्क होते हैं या हमने ऑफिस में करना है, वो क्या करेंगे, मुहूर्त निकलेगा तब करेंगे.
परफेक्शनिज्म वालों को हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, एवरीथिंग परफेक्ट। अदर कॉजेस fear of success. Fear of failure तो we can understand, but some people have fear of success also. उनके लिए क्या है, success is very heavy and it carries a responsibility. अगर सक्सेस हो गया तो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। एंड सम पीपल थिंक दैट कि उनको एनवी और नहीं लेके आनी, मतलब अगर उनके फ्रेंड्स लूज हो गए, अगर सक्सेसफुल हो गए, तो इस चक्कर में वो एंगेज ही नहीं करते अपने आप को टास्क में। दे हैव सच अ फियर ऑफ सक्सेस, दे आर अफ्रेड ऑफ दिस थिंग। अगर सक्सेस हो गया तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और बहुत ज्यादा अटेंशन भी नहीं शुरू हो जाएगी दूसरों से, दूसरे जजमेंट भी देंगे, सोशल प्रेशर भी आ जाएगा। और सक्सेस जो है वो अट्रैक्ट करता है एनवी। Some people believe this thing that success will attract envy. They will lose their friends. They don't complete their work. Task aversiveness. This is also one of the cause of procrastination. जब टास्क हमारा बहुत ज्यादा बोरिंग हो, फ्रस्ट्रेटिंग हो, हमारे लिए कोई भी रेलेवेंस ना रखता हो, हमें अच्छा नहीं लगता वो टास्क करना, वी डोंट लाइक दैट टास्क, इट फॉर अस बोरिंग है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। एंड वी टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट मोर। बिल्कुल भी हम नहीं करना चाहते वो टास्क, हमारे लिए बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल भी वो प्लेजेंट नहीं है, इट इज अनप्लेजेंट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू, अगर हम आपको ये कहें कि आपको किसी से फोन पे बात करनी है, दैट पर्सन जो है आप उसको लाइक नहीं करते, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, राइट? सो आप क्या करोगे, आप उसको अवॉइड करोगे करना, बिकॉज दैट टास्क इज अनप्लेजेंट एंड अनएंजॉयबल फॉर यू। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनको टास्क ऐसा दिया जाता है जो उनके लिए अनप्लेजेंट है, जो उनके लिए बोरिंग है, इररेलेवेंट है, वो उस टास्क को करना नहीं चाहेंगे और दे ट्राई टू प्रोक्रेस्टिनेट दैट टास्क। कोई और कर ले, मैं नहीं करूंगा। और अगर हम उनको फोर्स करेंगे करने के लिए, इवन देन आल्सो दे विल नॉट give his or her 100%, because that task has no relevance. Lack of motivation. टास्क, अगर हमें मोटिवेशन नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं है टास्क को करने के लिए, तो हम उस टास्क को नहीं करते। जब भी हमें कोई टास्क करना होता है, whenever we feel good और motivated, तो हमारा ब्रेन जो है वो एक रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है, जब डोपामाइन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें वो और फील गुड फैक्टर देता है, वी फील मोर मोटिवेटेड टू डू समथिंग। लेकिन जब हमें मोटिवेशन नहीं होती या हमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो होता है कि ब्रेन हमारा जो है, हम अनहैप्पी होते हैं तो कम रिलीज करता है डोपामाइन। बहुत बार हम कोई टास्क इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उस टास्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या हम कहते हैं हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही। एंड मोटिवेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जब हम कोई काम करते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड व्हेन वी डू टास्क फॉर आवर ओन एंजॉयमेंट, our own purpose, that is called as intrinsic motivation. क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत लो होती है, वो हमेशा वेट करते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही। अब देखो, अर्ज है और एक एक्शन है। अर्ज पहले आती है काम करने की, उसके बाद क्या आता है, एक्शन। अब अर्ज आई हमें कि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करना है, मैंने ये काम नहीं करना। अर्ज हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारा माइंड तो हमारे कंट्रोल में है। हम क्या करेंगे, चाहे अर्ज ये आ रही है कि प्रोक्रेस्टिनेट करो, लेकिन हम एक्शन लेंगे। अगर हम ये सोच लें कि हमने एक्शन लेना है, तो अर्ज है डिले कर पाती।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारा एम्फेसाइज हमारी अर्ज पे लगा देते हैं। मेरी अर्ज मुझे ये कह रही है कि अभी मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मेरा मूड लो हो रहा है, मुझे अभी काम नहीं करना। तो मोटिवेशन ऑलवेज फॉलोज एक्शन, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर बार ये देखें कि हम मोटिवेटेड हैं या नहीं। कई बार नहीं आती मोटिवेशन, लेकिन हमें काम करना होता है। नेक्स्ट इज लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। कई बारी इंडिविजुअल कोई भी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन बीच में आ जाए या काम रुक जाए तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, हम उसको कंप्लीट नहीं करते। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सपोज अब ये जो वेबिनार चल रहा है, चलते चलते ये बंद हो जाए और दोबारा से हमें स्टार्ट करना पड़े। अब डिपेंड करता है कि मैं जो मुझे इसके कारण फ्रस्ट्रेशन होगी या अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड होंगी या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। कुछ लोग होते हैं जो अनप्लेजेंट चीजों को या पेनफुल चीजों को या डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अवॉइड नहीं कर पाते, वो उनके तो जो लोग फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस पे लो होंगे, दे विल डू मोर प्रोक्रेस्टिनेशन। They have inability to tolerate any kind of discomfort. They have inability to tolerate unpleasant feeling. अब जब भी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होगी, it leads to mental health conditions such as depression or anxiety. Fear of evaluation and feedback. इससे पहले हमने दो fear की बात की, fear of failure and fear of success. Now this is one, fear of evaluation and feedback. बहुत बार इस तरह होता है कि हमें ये fear होता है कि दूसरे हमें evaluate कर रहे हैं, अगर मैं ये काम करूंगा कर ली, because of fear of evaluation from other person, we tend to procrastinate the task. हम टास्क इसलिए कंप्लीट नहीं करते क्योंकि हमें दूसरों से नेगेटिव फीडबैक जो है वो नहीं चाहिए होता, या हम नहीं चाहते कि दूसरे हमें इवेल्युएट करें नेगेटिवली। So fear of evaluation and feedback will lead to more procrastination. हम ज्यादा डिले करते हैं किसी भी टास्क को अगर हमें पता है कि हमें दूसरे जो है इस पे अपनी इवेल्युएशन देंगे। Say low self क्या होता है? Have believe what you believe about yourself. हमें इतनी कथा है कि हम किसी भी काम कंप्लीट कर लेंगे, को लेके क्या बिलीव सिस्टम है। लो सेल्फ है, लो सेल्फ कैसी होती है, वो क्या करते हैं, दे टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट मोर। वो उस टास्क को कंप्लीट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको अपनी एबिलिटी, दे डोंट ट्रस्ट इट। क्या बोलेंगे, आई कांट डू इट, आई मस्ट नॉट मेक अ मिस्टेक। irrational views about themselves. Lead them to procrastinate more. बहुत सारे ऐसे होते हैं, कई सिचुएशंस होती हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है या बहुत ज्यादा नॉइजी है। There are some situations in which we are unable to concentrate नहीं कर पाते, हमारी कंसंट्रेशन की एबिलिटी लो होती है। कोई भी काम हमें मिला, हम उसको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं लगा पा रहे, जिस वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने आप को
छोटे छोटे काम में जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें अपने आप को लगा लेते हैं, जो मेन वर्क है हमारा हमें वो करना ना पड़े। सो कंसंट्रेशन की डिफिकल्टी होने की वजह से भी हम कई बार टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। चाहे इस तरह का एनवायरनमेंट है जहां पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शंस जैसे योर फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल आईडीज, उनकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जो गोल है हमारा वो क्लियर नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट गोल है, इट इज वेग, इट इज नॉट क्लियर। गोल है तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हमने कब स्टार्ट करना है और कैसे इसको कंप्लीट करना है। So we have a difficulty in concentrating on that particular task. हम क्या करते हैं, खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर बंद कर देते हैं, एंड देन आफ्टर 1 hour we again start and we again do the same thing, क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। बैठे हैं काम करने के लिए लेकिन we indulge ourselves in daydreaming, फोकस नहीं है, हम फोकस नहीं कर पाते टास्क पे, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सो दीज आर द सम ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ दैट वी प्रोक्रेस्टिनेट। इसके अलावा अगर हम और कॉजेस की बात करें या रीजंस की बात करें, देयर आर सर्टेन मेंटल इलनेसेस आल्सो। मेंटल इलनेसेस सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, ये 3 ऐसी मेंटल कंडीशंस हैं जिसके कारण हम कई बार टास्क को प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। अगर बहुत इवेंट आती है उससे हमने उसकी कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं होगा कंप्लीट, डेडलाइन चली जाएगी। सो जब भी हम टास्क करना चाहते हैं और एंजाइटी ज्यादा हो जाए, इवन उस तरफ उस टाइम भी क्या होता है कि हम टास्क को अपना 100% नहीं दे पाते, एंड स्ट्रेस, कोई हमें डिफिकल्ट काम मिल गया करने के लिए, स्ट्रेस हो गया, डेडलाइन हैं हम वर्क। जो लोगों में डिप्रेशन के ट्रेड्स होते हैं या यू कैन से क्लिनिकल डिप्रेशन वालों का तो मन ही नहीं करता काम करने का, ठीक है, वो यही कहते हैं मेरा मन नहीं है काम करने का, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, दे फील वेरी होपलेस एंड दे विल नॉट कंप्लीट देयर टास्क। टास्क को ये सारे रीजंस हैं या कॉजेज हैं जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा करते हैं। पर ज्यादातर जो लोग हैं, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सक्सेस, और दे डोंट ट्रस्ट देयर एबिलिटीज एंड परफेक्शनिज्म, दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से हम ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हम ज्यादा डिले करते हैं, आज वाला काम कल करेंगे, कल वाला काम परसों करेंगे, इस तरह हम करते रहते हैं डिले। नाउ व्हाट डू यू when you procrastinate? आप क्या करते हो जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? कुछ तो करते होगे। अब मैंने काम नहीं किया, जिस टाइम मैंने ये काम करना था मैंने उस टाइम इस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया कि मैंने ये नहीं करना, लेकिन उस टाइम मैं कुछ और तो कर रही हूं। स्टडीज ने जो आज तक ये रिसर्चेस ने ये इंडिकेट किया है कि नॉर्मली लोग ये करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और स्टेयर करना शुरू कर देते हैं। और कोई भी टेस्ट करने के लिए उसमें अपने आप को ऑब्सेस्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है, अपना माइंड डाइवर्ट करना होता है कि जो काम मुझे मिला है मुझे वो करना ना पड़े, तो इसलिए मैं अपने आप को दूसरे काम में लगा देता हूं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, some people call up their friends, some people read novels and fiction,
Some read newspaper and go to sleep also. And I go shopping. So कि इतने सारे रीजंस तुमने लिखे हैं, इतने सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसमें आप रिलेट कर सकते हो कि आप करते हो जब आपको असाइनमेंट मिली कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की, या आप करने लगे तो आपने क्या करना शुरू किया। यूथ है वो क्या करती है, ज्यादातर फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल्स, वीडियो देखनी शुरू कर दी। जब भी हम कोई वीडियो देखनी शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एक वीडियो देख लेते हैं फिर हम करेंगे काम। एक वीडियो देखते 1 घंटा 1.5 घंटा देखिए और उसके बाद वी फील टायर्ड, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ऐसे करके जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो क्या करते हैं, दे हैव सो मैनी एक्सक्यूजेस। ये से ही उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं जो वो यूज करते हैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए या अपने आप के लिए अवॉइडेंस कोपिंग के लिए, कि अगर हम इसको अवॉइड भी कर रहे हैं तो उसको कोप अप करने के लिए हम अपने आप के लिए बेसारे एक्सक्यूजेस को रख लेते हैं कि मैंने तो इसलिए नहीं काम किया क्योंकि मैं तो इस काम में बिजी था, और मैंने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्यादा काम है। तो इस तरह क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट्स है जो हम करते हैं जब भी हम होते हैं। See the effects of procrastination. Five reasons was there for procrastination. There are negative effects of procrastination. Procrastination के पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होते। हाँ, सिर्फ यही है कि जो हाई अचीवर है, ਹਾਈ ਅਚੀਵਰ ਜੋ ਹੈ वो डेडलाइन चोरी हुई है, मतलब बैंक से लुੱਟੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ है ना सर। लुधियाने ਵਿੱਚ काइंडली बच्चों म्यूट करें अपने आप को प्लीज। मनदीप कौर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Dear participants, please mute your mic. Thank you. Okay. Yes, please, ma'am. Negative effects of procrastination. प्रोक्रेस्टिनेशन के पॉजिटिव इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते। अगर हम ये सोचे कि प्रोक्रेस्टिनेशन करना पॉजिटिव है, स्ट्रेटेजिक डिले कर सकते हैं। सिर्फ जो होते हैं वो अपना डेडलाइन पे काम प्रॉपर कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सो नाउ विल सी व्हाट आर द नेगेटिव। जरूरी, जब भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों ही इफेक्ट होती है। अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें, हम टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए डेडलाइन पे या हम प्रॉपर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या होगा, एंजाइटी करने के लिए अब हमने पहले बहुत सारे काम जो हैं इकट्ठे कर लिए। इतने सारे काम डेडलाइन से, और अगर हम यहाँ पे मल्टीटास्किंग करेंगे, बहुत सारे काम को इकट्ठे करेंगे, इवन देन मल्टीटास्किंग विल आल्सो क्रिएट एंजाइटी एंड स्ट्रेस। हम काम नहीं कर पाए तो हमें स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, और फिजिकल हेल्थ पे भी हमारा इफेक्ट पड़ता है जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, जब भी हम एंजाइटी में होते हैं या प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेंगे जब प्रोक्रेस्टिनेशन कर लिया उन्होंने काम किया, इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, पहले एंजाइटी और स्ट्रेस होगा। एंजाइटी स्ट्रेस होने से हमारी उसका इफेक्ट पड़ेगा फिजिकल हेल्थ पे। हमारी फिजिकल हेल्थ जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। किसी को हार्ट डिजीजेस होती हैं, किसी को ज्यादा फिजिकल में हेडेक हो सकती है, हो सकता है। तो फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गया, मे बी इम्यून सिस्टम वीक हो जाना, स्लीप क्वालिटी विल बी लो, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस
हेडेक ऑल्सो होना, पुअर कंसंट्रेशन। तो ये सारी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी सबकी हैबिट है वर्क परफॉर्मेंस। चाहे यहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस की बात करें या एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें, वर्क परफॉर्मेंस कैसे, जब डेडलाइन हमने मीट की, डेडलाइन के पास टाइम था और कम टाइम में हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो हमारी है वो लो हो जाएगी, हम उतनी अच्छी तरह से उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी तरह से हम ज्यादा टाइम में डिवाइड करते थे। वेस्टेड टाइम, हम बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम में हम बहुत सारे काम कर सकते थे, बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, लेकिन सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमने अपना टाइम इतना वेस्ट कर दिया, वो भी अनप्रोडक्टिव वर्क। हम जो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे या हमारे करियर के लिए या हमने बहुत अच्छे मार्क्स लेने थे या हमें कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था, चाहे हम पीएचडी कर रहे थे, कुछ भी हम कर रहे थे, हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं लाइफ में, लेकिन जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम बहुत बार अपनी बहुत इंपॉर्टेंट जो होती हैं अपॉर्चुनिटीज, जिन्होंने हमें हमारी करियर में एक रोल प्ले करना होता है, हम उसको मिस आउट कर देते हैं और वो किसी और को मिल जाती है। जो हमने काम ही कंप्लीट नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, हमें फिर दोबारा से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया तो हम दोबारा से उस विशियस साइकिल में पहुंच जाते हैं और हम वो काम को दोबारा नहीं लेते, क्योंकि हमने बहुत अच्छी किया, हमने मिस आउट कर दिया। स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप, हमारे आसपास के लोग, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, कई बार रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कोई काम, मैंने बोला मैं कल करूंगा, कल नहीं किया, फिर हमने फिर कल नहीं किया। इससे क्या हुआ, रिलेशनशिप विल आल्सो सफर, यू विल हैव रिलेशनशिप एंड अल्टीमेटली जो डेस्टिनेशन है वो को बहुत लो कर देता है। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है हमारे लिए, हमारी एबिलिटीज के लिए, हमारी कैपेसिटीज के लिए, वो और लो हो जाता है। हम और ज्यादा ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूं कुछ करने के लिए। और लो कॉन्फिडेंस एक बार आ जाए, ज्यादा मेंटल हेल्थ कंडीशन हमारी इफेक्ट होती है और हम अपने आप से बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर देते हैं। मेरे से तो अभी नहीं हुआ तो मेरे से तो कभी भी नहीं होगा, तो इसको कंप्लीट ही नहीं कर सकता। हम अपना खुद का जो इवेल्युएशन है वो नेगेटिव करते हैं और दूसरे को भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारे सेल्फ एस्टीम भी लो है, हमें कोई काम कहेगा भी तो हम क्या करेंगे, रहने दो, पहले तो मुझसे नहीं हुआ था। सो दीज आर द मेन नाइट एग्जाम आना था लेकिन एग्जाम के लिए तैयारी नहीं की, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, 4 दिन है, 5 दिन है, एंड में कर लूंगा, एंड में कर लूंगा, और फाइनली डे आपका एग्जाम है और एग्जाम से एक दिन पहले आपकी ये कंडीशन होती है। समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहां से स्टार्ट करें और कहां से फिनिश करें, क्योंकि फर्स्ट these are strategies to overcome. So how to deal with procrastination, which will help you to overcome procrastination or to reduce the you are procrastinating. सबसे पहला क्या है, you should be aware of this fact that you are procrastinating. So figure out why you are procrastinating.
अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, क्यों पोस्टपोन, क्यों डिले कर रहे हैं, तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते. सो फॉर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल कहते हैं कि हम अवेयर हैं अपने बारे में, हम अवेयर हैं. लोग होते हैं, they know the reason why they are not doing any task. So you take a paper and write it on paper. बोरिंग था इसलिए मैंने नहीं किया. क्या टास्क अनप्लेजेंट है इसलिए मैं नहीं कर रहा. क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या डिसऑर्गेनाइज्ड हो, आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया, आपने टाइम प्लानिंग नहीं की, आपने टाइम मैनेज करे. ये either you are perfectionist. सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि हम अगर किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क को डिले या पोस्टपोन कर रहे हैं तो उसके रीजंस क्या हैं. एक बार जब हमने डिस्कवर कर लिया कि रीजंस क्या हैं, देन वी कैन डेवलप आवर एक्शन प्लान. उससे पहले कोई भी एक्शन प्लान जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा. फर्स्ट वी नीड टू फिगर आउट टाइम मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ. एक टू डू लिस्ट, what needs to done, what needs to be done. Allow time to complete things. टाइम मैनेज करना, प्रॉपर प्लान. जब भी आप कोई गोल सेट करते हो, गोल के साथ हमेशा डेडलाइन अटैच करो. हम क्या करते हैं, डेडलाइन नहीं होती. अगर सपोज आपकी टीचर आपको ये बोले यू हैव टू गिव असाइनमेंट, लेकिन उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी. जब डेडलाइन नहीं दी तो हम कहते हैं जब डेडलाइन देगी तब कर लेंगे. तो हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ कोई डेडलाइन नहीं है इसलिए हम कंप्लीट नहीं करते. अपने लिए गोल जब भी सेट करना है तो डेडलाइन फिक्स करो. एंड जब भी आपने शेड्यूल तैयार किया है तो उस शेड्यूल को आप रिवाइज प्लानिंगबिलिटी की बात हम करते हैं. पहले ये देखो भी जो कितना टाइम हमें मिला है कंप्लीट करने के लिए. एक मिनट मैम. दलजीत कौर प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. दलजीत कौर. म्यूट. जी मैम कंटिन्यू. टाइम उस लिस्ट what must be done, what should be done and what you would like. और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को अलग लिख लो और कोशिश करो एक्टिविटीज हैं उनको ड्रॉप किया जाए. प्रायोरिटाइज योर टास्क. हम ये नहीं देखते बहुत सारे टास्क जब हमारे मेथड, एबीसी मेथड हमें ये कि हमें ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम क्या करेंगे, जब भी हम पेपर पे लेटर लिख लेंगे, जितने भी टास्क 3 कॉलम बना लीजिए, ए गोल्स, बी गोल्स एंड सी गोल्स. अब जो ए गोल है वो कौन से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए.
हमें कंप्लीट नहीं करने हैं में लिख लेंगे, क्योंकि वो हाई इंपॉर्टेंट वाले टास्क हैं, हाई इंपॉर्टेंस रखने वाले टास्क हैं। बी जो है, बी गोल्स हैं वो वाले जो कम इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू ए, एंड सी गोल्स हमारे वो हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। जब हमने प्रायोरिटाइज किया होगा, अगर हमारे पास इस टाइम 5 काम है करने के लिए, हम कॉलम बनाने के बाद हम ए बी सी लिख लेंगे, इसका इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बी जो ए से कम इंपॉर्टेंट है, एंड सी में हम वो वाला इंपॉर्टेंस नहीं रखते। सो वी कैन यूज एबीसी मेथड। कई बार एबीसी की जगह पे वो क्या करते हैं, हाई एम और एल यूज कर लेते हैं, HML एबीसी की जगह पे। H मीन्स हाई इंपॉर्टेंस, मीन्स मॉडरेट इंपॉर्टेंस या मीडियम इंपॉर्टेंस, एंड L मीन्स लो इंपॉर्टेंस। अगर हमने ये चार्ट बनाया होगा टाइम मैनेजमेंट की, शेड्यूलिंग की, टास्क की प्रायोरिटाइजेशन की होगी पहले से, तो फिर हम इस पे वर्क करने की कोशिश भी करेंगे। हमें बहुत बार प्रैक्टिस करनी है कि अगर मैं आपको आज कह रही हूं कि ये आप पढ़ने के बाद आप प्रोक्रेस्टिनेट बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और टाइम मैनेजमेंट करने टाइम भी आपको, जब शेड्यूल बनाया है, बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं लेकिन उस प्लानिंग को कंप्लीट ही नहीं करते या एग्जीक्यूट ही नहीं करते। एक हुआ, सेकेंड टाइम फिर ट्राई करो, सेकेंड टाइम नहीं हुआ, थर्ड टाइम फिर ट्राई करो, कभी तो होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बिकॉज टॉलरेंस नहीं है हमारे पास, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार अगर फेलियर हो गया तो छोड़ो, करते ही नहीं। मोडो टेक्निक, ये टेक्निक में उन्होंने क्या यूज किया था, इटालियन से टेक्निक आई थी। इटालियन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो टाइमर यूज किया था वो टोमेटो शेप टाइमर था। अगर आप ऐसे प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब भी आपने कोई गोल सेट करना है, चाहे एकेडमिक्स का गोल है, चाहे वर्क परफॉर्मेंस का गोल है, आपने जब, यू शुड सेट अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स। 25 मिनट्स काम करोगे, 5 मिनट्स की ब्रेक लोगे, या यू कैन यूज अकॉर्डिंग, आप अपने लिए कुछ भी सेट कर सकते हो ब्रेक। आफ्टर दैट अगेन स्टार्ट अ न्यू गोल। इस तरह से हम इसको रिपीट करते हैं। 25 मिनट्स का हमने किया, ठीक है, उसमें कितने साइकिल्स हो गए 1 आवर में, 4 साइकिल्स। 1 आवर की ब्रेक होगी और 4 साइकिल 2 आवर्स में हमने उसको कंप्लीट किया। जो लोग ये भी नहीं कर पाते, दे कैन यूज 5 मिनट टेक्निक। कोई भी काम हमने करना है उसको 5 मिनट करो जब शुरू कर रहे हैं करने के लिए। जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, 5 मिनट काम करो, फिर थोड़ी ब्रेक ले लो, दोबारा से शुरू करो। इस तरह से धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है के लिए। देख सकते हैं, स्टेप 1 हमारा क्या था, हमने टास्क को पिक किया। 2 में हमने क्या किया, 25 मिनट का टाइमर सेट कर दिया। स्टेप 3 में हमने उस टास्क पे वर्कआउट किया। स्टेप 4 में हमने 5 मिनट्स की ब्रेक ली, और स्टेप 5 में हमने अगेन वो शुरू करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट की इतनी सारी टेक्निक्स हैं, हम कोई भी यूज करके हम अपने आप को फोकस रख सकते हैं, उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्नड। आप अभी भी सोच सकते हैं, थिंक ऑफ द वन थिंग जो करंटली आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। ऐसी कोई भी चीज जो आप करंटली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उसको पेपर पे लिख लो।
चाहे पर्सनल का वर्क आपका, चाहे वो स्कूल वर्क है, कॉलेज है, और इट शुड बी, इट मे बी इट इज वर्क रिलेटेड वर्क, डाउन ऑन अ पेपर. नाउ राइट ऑल द रीजंस फॉर योर डिले. क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डिले कर रहे हैं? उसके लिए हम कैसे करेंगे? I am delaying on dash because dash. दो कॉलम्स बनेंगे, रीजंस फॉर डिले एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डिले. भी हम कह देते हैं जिसमें हम अपने इरेशनल थॉट्स को, हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न को हम चैलेंज करते हैं, एंड वी ट्राई टू रिप्लेस आवर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स विद पॉजिटिव वन. हमने कभी आर्गुमेंट नहीं किया कि हम डिले क्यों कर रहे हैं, हमने, लेकिन ऐसे जब आप एक चार्ट बनाते हैं कि एक तरफ रीजंस लिखो मैं क्यों डिले कर रहा हूं, कोई भी एक इंपॉर्टेंट काम आप सोचो, आप लिखो इस पे कि मैं डिले क्यों कर रहा हूं, क्या मेरे रीजंस हैं, आर्गुमेंट्स करो उसके लिए कि मैं क्यों उसके अगेंस्ट डिले. जब भी हम आर्गुमेंट्स करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि ये काम हम कर, ऐसे ही हम अपने आप को डिले कर रहे थे. इसमें हमने प्रैक्टिस करना है जो भी हमने लर्न किया. कहते हैं रीजन बताओ, रीजन बताओ. मुझे ये काम करना चाहिए, मैं जो डिले कर रहा हूं मुझे डिले नहीं करना चाहिए. चाहे आपके करियर रिलेटेड हो या आपके एग्जाम्स के लिए भी हम डिले करते रहते हैं. अल्टीमेटली क्या होगा, वी विल फेल, क्योंकि हमने पढ़ाई ही नहीं की और हमने एंड में क्या बोला, मैं तो फेल हो गया, इसलिए अच्छा हुआ मैं फेल हो गया, मैं तो आगे से इसको पढ़ूंगा ही नहीं, मैंने तो आगे कंप्लीट ही नहीं करनी. लेकिन ये नहीं पता था कि हमने डिले कर करके ही हम जो है हम इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि हम फेल ही हो गए हैं. दिस इज वेरी हेल्पफुल टेक्निक. जो लोग इसको सीरियसली यूज करते हैं उनको एंड में इसका रिजल्ट जरूर मिलता है, एंड दे विल कम टू नो कि वो ऐसे ही कर रहे थे. ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स. कोई बहुत बड़ा काम है जो हमने करना है, जो हम कंप्लीट नहीं कर सकते, हम ट्राई टू ब्रेक इट आउट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क. छोटे छोटे उसके पार्ट्स बना लीजिए. यू कैन से सब गोल्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम उसको क्या बोलते हैं, सब गोल्स. जब अगर हमारे किसी टास्क के 3 या 4 सब गोल्स हैं, ठीक है, जब हमारा पहला सब गोल हमने अचीव कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो हमें एक बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन या यू कैन से ग्रेटिफिकेशन हमें होगी कि हाँ हम कर रहे हैं, और अंदर उस काम को करने के लिए क्या करते हैं. सपोज किसी ने अपनी अलमीरा साफ करनी है, क्लीन करनी है, जो बहुत ज्यादा मेस्ड हो चुकी है. क्या करते हैं, हम अलमीरा खोलते हैं, देखते हैं बहुत सारा कुछ है इसमें, तो मैं कैसे करूंगा, ये सोचने में, वरी में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि हम उसको बंद कर देते हैं और बैठ जाते हैं. कल इसको ये शाम को करूंगा, मम्मी को बोल दूंगा, मैं कल कर लूंगा. हाँ, हम क्या करते, पहले हम क्या करते, आज का मेरा ये टास्क है कि मैं एक है स्लाइड, उसी को ही मैं क्लीन करूंगा. एक किया तो हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी. लिया, और जब हमने एक्शन किया तो एक्शन हमें, और हम टास्क को ब्रोकन डाउन कर सकते हैं मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, अगर हमें पता है कि हमें. तो कई लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चनेट करेंगे वो ये कहेंगे मैं कर लूंगा, बहुत दिन है. लेकिन जब हम ये टेक्निक यूज करेंगे, हमें पता है कि हम इसको डिले कर करके एंड में हम
भी नहीं कर पाए, ऐसा रेगुलेट योर बिहेवियर। तो हम क्या करेंगे, बना लिया अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें आउटलाइन हमने तैयार, इसको लगेगा उस अकॉर्डिंग जब हमने थोड़ा थोड़ा करके अचीव किया तो अल्टीमेटली विदाउट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, विदाउट एंजाइटी, विदाउट स्ट्रेस हम उस काम जरूरी नहीं होता बड़ी अचीवमेंट ही चाहिए, जरूरी टास्क एक ही टाइम पे करना है। सिलेबस में आपके 4 यूनिट्स हैं, आप उसको डिवाइड कर लो। अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर शेड्यूलिंग करो। पहले पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन अगर हमने पहले ही डिसाइड किया होता कि आज मैं एक चैप्टर करूंगा, ब्रेक, फिर कल मैं सेकंड चैप्टर करूंगा, इस तरह से हम वो कंप्लीट भी हो जाता है टास्क, और हमें ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ भी नहीं किया। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। जो यूथ है या आप लोग की बात करूं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कई बार हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। So it is very important, you should try to eliminate distraction. जिससे भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, चाहे अपने सेल फोन से, अब मैं आपको ये बोलूं आप फेसबुक को बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें लाइफ में इंजॉयमेंट भी चाहिए, लाइफ में चाहिए, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं जितना टाइम हमने टास्क करना है उस टाइम में आपको डिस्ट्रैक्शंस में इंडल्ज ना करें। अगर आपको जीमेल या व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन, अगर आप फोन पास में रखा है, बार बार आपका ध्यान है कि फोन तो नहीं आ रहा, मैसेज तो नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा टाइम के लिए टर्न ऑफ कर दो, फिर ऑन कर लेना। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं पहले मैं एक वीडियो देख लूं फिर मैं स्टार्ट करूंगा। हम पहले क्यों नहीं करते? पहले जो इंपॉर्टेंट, उसके बाद अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको वो वीडियो ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर हम सारा दिन ही फेसबुक देखते रहें तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस। ऐसे ही अगर आप स्टडी का काम कर रहे हो या कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो, उसके बाद आप यूज करते हो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे वो ईमेल से है, फोन से है, या फेसबुक है, या और भी कोई, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को आपने क्या करने, ताकि आप अपने उस पर्टिकुलर टास्क पे फोकस्ड रह सको, आप उस पे ज्यादा कंसंट्रेट कर सको। अगर हम डिस्ट्रैक्शन को रिमूव, उसको साइड पे नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, तो हमारा टास्क जो, जितनी भी गेम्स पर है, उनका ही काम होता है, वो उनके रिवॉर्ड सेंटर पे हमारे काम करता है। हमें बहुत ज्यादा लगने लग जाती है जब हम करते हैं, जब पे कुछ भी पंच करते हैं, या हमने कोई भी पर्टिकुलर वीडियो किसी भी थीम की देखी, नेक्स्ट टाइम जब फेसबुक ओपन करोगे तो क्या होगा, फेसबुक जो है कर देता है। देखना शुरू किया, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, ऐसे करते इतना टाइम गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और उसके बाद हम क्या करते हैं,
हमें ये होता है कि मैं बहुत टायर्ड टायर्ड हो गया हूं, अब मैं एक नैप लेना चाहता हूं। उसके बाद फिर फोन पकड़ा और शुरू कर दिया। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा यही है, जो हमें बहुत सारे कामों को करने के लिए रोकता है। ठीक है, ये एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस उस पर्टिकुलर टाइम पे किसको देनी है। ये भी नहीं है कि आपका फोन हम लेके रख लें और ये बोले आप काम करो, तब भी आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। बट इट इज इन यू ओनली कि आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना बिहेवियर जो है वो रेगुलेट करना है कि नहीं करना। पर्सनल स्टैंडर्ड्स, जो लोग परफेक्शनिस्ट हैं उनके लिए हमेशा प्रोग्रेस को चूज करो ओवर परफेक्शन। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट टाइम आएगा मैं फिर स्टार्ट करूंगा काम, पता नहीं, कई बार आता ही नहीं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप ये वेस्ट करते रहो टाइम ये सोच के कि जब परफेक्ट टाइम आ जाएगा ना, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। देयर वाज अ स्टडी 2-3 इयर्स बैक स्टडी हुई थी, तो उसमें बताया गया था कि एक पीएचडी स्टूडेंट था जिसने 4 इयर्स लगा दिए थे थीसिस को कंप्लीट करने के लिए ही, जो वो 1 साल में जो कंप्लीट होने वाला था उसके बाद उसने 4 इयर्स लगा दिए उसको कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही जब हमने कोई बुक स्टार्ट की या असाइनमेंट स्टार्ट की, क्या बोलते हैं, हर एक वर्ड हर एक चीज परफेक्ट चाहिए मुझे। तो क्या करना चाहिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप 60% भी अचीव कर रहे हो, 80% भी अचीव कर रहे हो, आपको उसको करना चाहिए। ऑल और नथिंग थिंकिंग जो है ये ठीक नहीं होती। या मैं पूरा परफेक्ट होऊंगा या मुझे करना ही नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। इन एक्सक्यूजेस होते हैं। तो हमेशा स्टैंडर्ड्स को कोशिश करो क्या करने की, रिलैक्स करने की। अगर हम अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स को नहीं करेंगे, हम परफेक्शनिज्म एक्सपेक्ट करेंगे, तो हम उस काम को जितना कंप्लीट कर सकते थे हम उतना भी नहीं कर पाएंगे। डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन, नो वन इज परफेक्ट, सबसे गलतियां होती हैं। हम सिर्फ अपना कोशिश कर सकते हैं बेस्ट देने का। सो चूज ऑलवेज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। क्या हो गया अगर गलती हो जाएगी, फिर क्या हो गया। लेकिन हम क्या कहते हैं कि मेरी तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। बार क्या करते हैं, कोई काम करने के बाद उसकी बार बार देखते रहते हैं उसको, ये ऐसे नहीं ठीक लग रहा, ये ऐसे ठीक लग रहा है, इसमें ये भी ऐड होना चाहिए था। नो वन इज परफेक्ट। इससे बेटर है कि हम जितना कर सकते हैं उतना हम कोशिश करें करने के लिए। फॉर दैट आपको अपनी जितनी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो फैमिली ने आपसे कर रखी हैं या आपकी अपने आप से हैं, ट्राई टू अवॉइड दैट। हमने बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं, इसीलिए हम अफ्रेड करते हैं कि हमसे गलती ना हो जाए, हम एक्शन नहीं लेते। सो यहाँ कोशिश करनी है कि हम ये नहीं सोचेंगे अपने बारे में कि सब कुछ परफेक्ट ही हो। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की, लेकिन ये माइंड में नहीं रखें कि 100% अचीवमेंट हो या परफेक्शन ही आए, और अगर परफेक्शन नहीं आएगी तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। ऐसी थॉट प्रोसेस आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि थॉट प्रोसेस से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। थॉट्स जनरेट करते हैं फीलिंग्स को, और फीलिंग फर्दर जनरेट करती है हमारे पर्टिकुलर बिहेवियर। सो हमने यहाँ क्या करना है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। सपोर्ट सिस्टम, जो लोग अपने आप इस स्ट्रेटजीज को, हम क्या बोलते हैं, वो क्या करें, अपने आप के साथ काम में आप यूज करो सपोर्ट सिस्टम।
अगर हमने कोई भी काम करना है और हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे? यू शुड इन्वॉल्व योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, किसी को तो ताकि आपको याद दिलाते रहें कि डेडलाइन आने वाली है। या कई बार जब हमने किसी को बताया होता है कि हम पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अकाउंटेबल हैं उसके लिए, या अगर हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो दूसरा हमारे लिए क्या सोचेगा। तो एक चेक रखने के लिए जो लोग अपने आप नहीं कर पाते तो उनको चेक रखने के लिए क्या करना है? टेल योर फ्रेंड और पेरेंट्स टू चेक ऑन यू और टू रिमाइंड यू, जो आपको रिमाइंड करवाते रहें हर बार। देखो ये टेक्निक करते, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसपे आप अपने आप नहीं कर पा रहे उसको, आप अपने बिहेवियर को सेल्फ कर पा रहे, एट दैट टाइम यू कैन इन्वॉल्व योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, योर पीयर ग्रुप, योर टीचर्स, एनीबडी। दिस ऑल्सो वर्क्स इन द केस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। कई बार ये वाला वर्क होता है जब हम टास्क एवर्सिवनेस की बात करते हैं। रिवॉर्ड योरसेल्फ जो है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुली वहां पे रोल प्ले करता है जहां पे हम टास्क एवर्सिवनेस की कंडीशन में होते हैं। जब भी हमने कोई छोटा गोल, मिनी गोल या मिनी डेडलाइन को रीच कर लिया सक्सेसफुली तो अपने आप को रिवॉर्ड करो। टेक अ ब्रेक, मूवी पे चले जाओ, किसी तरह की ट्रीट दो अपने आप को। यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड ऑल्सो, कोई भी चीज जो आपके लिए रिवॉर्डिंग है आप वो इसको यूज कर सकते हो। लिटिल लिटिल इंसेंटिव्स जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। सो ट्राई टू अटैच रिवॉर्ड विद कोई सर कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में? आई थिंक मैम नो, नहीं, हेलो। हाँ बहुत जी, अच्छा आप चल मेरा रहा है। दूसरे आप मेरा बहुत दूसरे अच्छा। वाला म्यूट कर दीजिए। आप मेरे को कोई दूसरे वाले पे म्यूट कर दीजिए सर। आई जी थिंक जी वहां जी। से बंद हो गया। हेलो हानि मैम, कोई टेक्निकल इशू है? क्या हो गया नहीं नहीं, बताइए। बस हो गया। हो गया। नहीं नहीं, अब मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? यू आर वेरी मच ऑडिबल। ओके ओके। हाँ। रिवॉर्ड योरसेल्फ, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन। काम है जो आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे या आपके लिए वो अवर्सिव है, आपको अच्छा नहीं लगता करने के लिए, आप उसके साथ रिवॉर्ड को अटैच कर दीजिए। सपोज अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है और एक्सरसाइज को अवॉइड कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है कि मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, आप वहां पे इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आप कैसे करोगे? आपने क्या करना है, जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है, अगर आपको सपोज अच्छा लगता है कोई सीरियल देखना या कोई वीडियो देखनी, आप साथ में उस वीडियो को लगा लो। आप काम करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपके लिए आप उसको करना नहीं चाहते। जब हम इस तरह से दो टास्क की पेयरिंग करते हैं, जब भी हम दो टास्क की पेयरिंग करते हैं, एक वो टास्क जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंजॉयबल है और वो टास्क जो हमारे लिए इंजॉयबल या अनप्लेजेंट है, इंजॉयबल नहीं है या अनप्लेजेंट है, जब हम इन दोनों टास्क को आपस में एसोसिएट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग या रीइंफोर्स्ड। जब भी पेयरिंग होती है तो क्या होता है, रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। हमें फिर हैबिट हो जाती है, हमें रीइंफोर्समेंट महसूस होती है कि हम रीइंफोर्स्ड हो रहे हैं काम को करने के लिए। सो जब भी आपने कोई टास्क करना है, अगर आपने उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है, तो जब भी एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, मिनी गोल को आपने अचीव किया, तो आपको रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड जो है वो आपके लिए एक पर्सनल सिग्निफिकेंस रखता होना चाहिए।
otherwise that reward will have no impact on your behavior. हाँ, बहुत बार किसी को कुछ बिहेवियर लर्न करवाने के लिए हम यूज करते हैं रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे आपको रीइंफोर्समेंट क्या करनी है? सेल्फ रीइंफोर्समेंट। आप अपने लिए सेट करो कि अगर मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया तो मैं अपने आप को ये रीइंफोर्समेंट दूंगा। कोई और रखे, इससे बेटर है कि हम अपने लिए सेट करें कि अगर मैंने ये काम जो छोटा वाला मैंने डिवाइड किया था इसको मैं 1 आवर में कंप्लीट कर लूंगा, तो उसके बाद हाफ एन आवर मैं ये गेम खेलूंगा। फिर उस हाफ एन आवर की गेम को आप ज्यादा एंजॉय करोगे। ठीक है, जैसे सपोज अगर हम खाना खाने से पहले स्वीट्स खा लें, फिर खाना खाएं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद स्वीट खाते हैं। हम वेट करते हैं ना, पहले खाना खा लो फिर आपको स्वीट मिलेगी। उसी तरह जब भी आपने कोई काम करना है, आपने क्या करना है, whenever you achieve some goal or you meet successfully any deadline, you reward yourself with any kind of treat. चाहे मूवी देखने शुरू कर दो, चाहे आप किसी फ्रेंड से बात कर लो, कोई भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता हो। सो इसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें लेस इंपॉर्टेंट टास्क को हम मोर इंपॉर्टेंट टास्क के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं। लेस प्रेफरेबल टास्क को मोर प्रेफरेबल टास्क के साथ एसोसिएट कर देते हैं। अब हम ये बात करते हैं, जब मैंने आपको ये बताया था कि सम पीपल अवॉइड डूइंग एनी वर्क या दे टेंड मोर procrastinate because they have a subconscious fear of failure and success. Even Thomas Edison was a person who failed 1,000 times before he invented the light bulb. Now you have to see how can you face your fear of failure. This is very, very important. चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करें, चाहे हम किसी और चीज की बात करें, अपनी मेंटल हेल्थ की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, यू हैव टू फेस योर फियर ऑफ फेलियर। अगर हमने इस फियर को ओवरकम कर लिया तो हम कोई भी काम जो है कर लेते हैं। और यहां हमने क्या करना है, यू शुड फोकस ऑन योर पॉजिटिव ट्रेट्स। आपके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने क्या अचीव किया है, कौन सा स्किल आपके पास, उस पर फोकस करो। क्योंकि हमारी जो है थिंकिंग नेगेटिव होती है, इरेशनल होती है, और हम अपने साथ इंटरनल डायलॉग करते हैं। तो हम साइकोलॉजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग टेक्निक है कि जितने भी हमारे नेगेटिव सेल्फ टॉक हम जो करते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, उस क्या करना है, वी ट्राई टू रिप्लेस विद पॉजिटिव वन। सो ऑलवेज यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी आपने सेल्फ टॉक करनी है, आपने क्या करना है, इट शुड बी पॉजिटिव वन। करना है रिफ्रेमिंग हमने करने के टाइम पे हमने क्या करना है, हमने क्रिएट करनी है पॉजिटिव अफर्मेशंस। आई लव माई सेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव अफर्मेशंस। आई एम गुड इनफ, आई कैन डू दिस वर्क, आई हैव बेस्ट पेरेंट्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ये क्या है, अफर्मेशंस खुद क्रिएट करनी है। अगर कोई और हमारे लिए क्रिएट करेगा वर्कआउट नहीं करेगा जितना आप कर सकता था। इफ यू वांट टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिनकी सेल्फ एस्टीम लो है या सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, ऑलवेज यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी हम बैठे होते हैं, हम अब हमेशा अपने साथ एक इंटरनल डायलॉग जो है वो गोइंग ऑन ही होता है। हम क्या बोलते रहते हैं, मेरे से नहीं ये होना, मैं तो डिजास्टर हूं, मैं तो फेलियर हूं, मैं तो लूजर हूं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई हैव नथिंग इन माई लाइफ, आई हैव अचीव एनीथिंग, मैं अचीव कर भी नहीं सकता, मैं तो स्टूपिड हूं, मैं तो लूजर हूं, मैं तो लेजी हूं।
ये सारे क्या हैं? जो भी हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। अगर हमने अपने फेलियर को फेस करना है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, हम कहते हैं फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर फेल एक बार हो भी जाएंगे तो क्या हो गया? अब यहां मैं फेल वो नहीं कह रही जो आप एकेडमिक्स की बात करते हैं, ठीक है, वहां वो उस फेलियर की बात नहीं मैं कर रही, उसको मैं यहाँ कोट नहीं करूंगी। बट अदरवाइज जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम कोई काम नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, यू शुड ट्राई टू, हमें लगता है कि हमारे में एबिलिटी नहीं है उस काम को कंप्लीट करने की, सो देन यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन पॉजिटिव ट्रेड। आप फोकस करो अपनी स्किल्स पे, आप फोकस करो पॉजिटिव अफर्मेशंस पे, ट्राई create affirmations. There are thousands of affirmations are there. अगर आप गूगल पे भी कोट करोगे, गूगल पे भी आप पंच करोगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रेमिंग करना। रिफ्रेमिंग मीन्स when you try to replace your negative thought patterns, you try to replace your irrational thoughts to the rational one. तो इससे क्या होगा? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो और पॉजिटिव हो जाएगा, और इट विल हेल्प यू कंप्लीट और टू स्टार्ट और इनिशिएट एनी टास्क। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Kaur, kindly mute yourself. Dear participants, it is requested to you to kindly mute your mics. It is creating a lot of disturbance. Thank you. वो करना क्या बोल रहे हो? म्यूट कर दीजिए अपने इनसे। Visualize success. Another technique that we use. हाँ जी, हाँ जी मैम 12:45 तक का टाइम है थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी सर, बस खत्म होने वाला है। ओके जी, ओके ओके ओके, कंटिन्यू। Okay. Visualize success. This is also one of the technique that we use for reducing the procrastination. आपने क्या करना है? मेंटल पिक्चर क्रिएट करो। जब भी हमने कोई काम करना है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, हमें उसको अगर आप पहले ही उसका मेंटल पिक्चर जो है क्रिएट कर लेते हो, माइंड में विजुअलाइज कर लेते हो कि यू आर सक्सेसफुल, सो दिस विल गिव यू मोटिवेशन टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क। इसको करने के टाइम पे आप प्लान इन रिवर्स टेक्निक का यूज कर सकते हैं। प्लान इन रिवर्स टेक्निक वो होती है जब हम ये कहते हैं कि हमने जो टारगेट है हमारा, हमने वो देखा टारगेट क्या है और टारगेट अचीव करने के बाद हमें क्या मिलेगा, और हमने वो पहले इमेजिन कर लिया, हमने उसकी मेंटल पिक्चर क्रिएट कर ली, और उससे क्या होगा? हमें और पॉजिटिव फीलिंग आएगी उसको काम कंप्लीट करने के लिए, और हम उस काम को इनिशिएट करेंगे। सो कई बार हम ये भी करवाते हैं कि विजुअलाइज सक्सेस यूज कर इसका भी यूज करते हैं। जिन लोगों में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है वहां पे हम यूज करते हैं माइंडफुल एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन की रिलैक्सेशन टेक्निक्स, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले एंजाइटी हो जाती है। सो यहाँ आपने क्या करना है? ट्राई टू विजुअलाइज योरसेल्फ। कर लिया है, ये काम करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मेरे को प्रेस कर रहे हैं, जो भी उसका अल्टीमेट गोल अचीव करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अगर हम पहले ही एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर लेंगे, दिस विल हेल्प यू टू कंप्लीट एंड इनिशिएट योर टास्क। बेनिफिट्स ऑफ ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर हम कोशिश करके, ट्राई करके हम प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव करने की कोशिश करें या रिड्यूस करने की कोशिश करें तो उससे क्या बेनिफिट्स होंगे? पीस ऑफ माइंड,
कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई डिप्रेशन फील नहीं होगा, कोई सेल्फ एस्टीम लो नहीं होगी, कोई आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा. You will have peace of mind and you will feel more strong. Most important, you can take charge of your life. आप क्या करोगे? मैं ये कर सकता हूं काम, मैं करूंगा. फीलिंग कॉम्पिटेंट. जब भी हम कोई टास्क कंप्लीट करते हैं, हमें सक्सेस मिलता है, हम उसको डेडलाइन से पहले करते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव होती है एंड वी विल फील मोर कॉम्पिटेंट and we will experience more personal freedom. Thank you. इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगी. जस्ट 1 मिनट मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ बच्चों को.
Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for deliberating upon such a crucial issue. Rather, it is a vital issue which concerns the lives of all of us in the one manner or the other. Prior to joining of this webinar, majority of us may not be able to comprehend the proper meaning of procrastination. But the issue, in a manner which you have deliberated upon this, I think all of us have been able to rigorously understand this issue, that how we delay the things in our life, what are the causes behind this, how we should be particular, how we should be specific over such type of issues, and rather it would pay a lot in our life if we all dedicate punctuality, rather bring punctuality in our life in a very, very specific manner. So I thank you from the core of my heart on behalf of our management, principal ma'am, worthy colleagues and students. Now I invite Mr. Rahul Vora ji, a very close friend of mine. He will also deliberate over this issue. Please, Mr. Rahul Vora ji. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Sandeep ma'am. I just not very sure that the food today. Just मेरे को इतना करा है मैंने रिजल्ट करता हूँ और उन्होंने ये तो सेमिनार करते रहेंगे। टाइम कम मिला क्योंकि विकास मैम ने आज बीच में इंटरफेयर करना और उन्हें जो गाइड करना था उसे अच्छा मैम ने आज गाइड करा है। और जो मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मिनिस्ट्री का जो पोर्टल का वर्किंग है और जो जॉब सिनेरियो है, उसके रिगार्डिंग हम आने वाले टाइम में दोबारा एक नया प्रेजेंटेशन बना के मैं बच्चों को प्रेजेंट करूंगा। और आज के दिन के लिए गोपाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मैनेज करा, बहुत अच्छा अरेंज करा और आपके बिना आई थिंक ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और नीना मैम का भी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ और मैंने जब भी उनको कोई रिक्वेस्ट करी है तो उन्होंने कभी डिनाई नहीं करा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, sir. And now I request all the participants, if they have any sort of queries, they can write down in the chat box, and our worthy resource persons would provide utmost information pertaining to the queries which you will put in the chat box. Please, any queries, please write down in the chat box. Yeah, sir. They can write in the chat box, or they can message me. Message you personally, or you can message me personally. We can sort out it individually as well. Not a big deal. अगर बच्चे अभी पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। अगर बाद में हम नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, वो बच्चों के पास यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देते हैं बच्चे जिसने लिखना। मेरा नंबर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर किसी ने व्हाट्सएप में मेरे से कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो भी आ जाएगा। जी सर, जी सर। तीनों का नंबर हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। जी सर। अगर किसी का क्वेश्चन है दे कैन आस्क। या अभी हमारे पास टाइम है, अगर आप कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अभी हमारे पास टाइम है, 8-9 मिनट है हमारे पास अभी, बिकॉज इट्स ओवर ऑन 12:45, अभी 12:37 हुए हैं, तो वी हैव टाइम। जी 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 प्रियंका। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन, जैसे आपने कॉजेस मेंशन किए थे, ठीक है, कि प्रोक्रास्टिनेशन के मेन कॉजेस क्या, सो वांट टू नो कि OCD की obsessive compulsive disorder, so how it can be one of the causes for procrastination? Obsessive compulsive disorder is one of the mental health condition, right? At that time you have to consult mental health professional before. I will not suggest you to do time management. I will not suggest you to do positive affirmations, because they are already in one mental health condition. ADHD and OCD patients, they used to procrastinate.
consult mental health professional before, because here I am not focusing on the major mental illnesses. Else? Any other query, please? Okay. Ma'am, I have a question. Okay. That You can write in chat box also. सर उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. I think they should write in chat box. बेटा आप चैट बॉक्स में लिख दो, वहां से आपका प्रॉपर हमारे पास आ जाएगा. Is procrastinating is also a mental disorder? It is not mental disorder, it is habit which can lead to mental disease या mental health conditions. It is not mental disorder. Habit है जो हम करते हैं, लेकिन it's disorder. How to overcome the laziness? The laziness is also one of the cause of procrastination. अगर आप लेजी होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को, सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है और डिस्टर्बेंस आ रही है, यहाँ तो बाकी बैटरी का वो कह रहे थे कि बैटरी ना काफी बच्चे प्लीज अपने Should I answer now? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है. यस मैम, यस. Okay. Laziness is also one of the cause of procrastination. आप लेजी हो रहे हो, आप काम नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है? आपको अपने बिहेवियर को सेल्फ रेगुलेट करने की जरूरत है. हम अपने बिहेवियर को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्या है? हमने ये लेजीनेस हो रही है. ट्राई टू पुश योरसेल्फ. लेजी हूं, लेकिन हमने क्या करना है? हमने एक्शन लेना है. लेजी कम करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने माइंड में ये थॉट बना रखा होता है कि हम लेजी हैं इसलिए हम नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे आपने क्या करना है? आप जब भी लेजी फील करो, आप अपने आप को मोटिवेट करो ताकि आप उस लेजीनेस को अवॉइड कर सको और अपना काम कंप्लीट कर. आप ये भी सोच सकते हो कि पहले मैं काम कर लूं, फिर मैं बेड पे लेट जाऊंगा अगर मुझे लेजीनेस भी हो रही है, मैं इसको डिले कर देता हूं. हमारे पास जो हमारी ईगो है वो हमें हेल्प करती है. हमारे बिहेवियर के कोई भी ऐसा कोई पार्ट है जो हम उस टाइम नहीं करना चाहते, तो उसको वो डिले कर देती है. जैसे इड हमें कहती है कि हमें अभी सेटिस्फेक्शन चाहिए, मैं अभी लेजी हूं, मुझे काम नहीं करना. लेकिन ईगो क्या करेगी? हमारी हमें चेक रखेगी, रियलिटी चेक देगी कि इस टाइम पे लेजीनेस जो है वो हमारे लिए नेगेटिवली प्ले कर रहा है. तो आपको कोशिश करनी है, जब भी आप लेजी फील करो, आप अपने आप को की कोशिश करोगे, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने की कोशिश करोगे. आप डिले भी कर सकते हो उस चीज को. डियर पार्टिसिपेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हमने ना, मैं कंटिन्यू करूं ना आंसर? सॉरी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू. एक मिनट मैं थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर दूं. अभी हमने ना आपको एक लिंक डाला है, फीडबैक लिंक है, वो आप सभी बच्चे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे उसको फिल कर दें. जब आप इसको फिल करके सबमिट करेंगे तभी आपको जो है अपना ई सर्टिफिकेट जो है आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा. ठीक है? Very good afternoon, ma'am. I have one question. Yes, ma'am. Ma'am, is perfection is always मैम जो परफेक्शन का आपने बताया कि it always did it always leads to delay in our work or in our decision? क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि when ऐसा नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता. लेट मी आंसर योर क्वेश्चन. हमेशा जरूरी नहीं है कि परफेक्शनिज्म जो है वो नेगेटिवली ही प्ले करेगा. कई लोग इतने ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और हाई अचीवर्स होते हैं, दे हैव अ परफेक्शनिस्ट थिंकिंग. लेकिन जब कभी उस परफेक्शनिस्ट थिंकिंग में हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा, फिर हमें प्रॉब्लम होगी.
राइट ऐसा नहीं है कि अकेला यही मेजर कॉज है प्रोक्रेस्टिनेशन का, या हमेशा नेगेटिव ही होता है। ये आपके हाथ में है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो और बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो तो क्या वो आप जो काम कंप्लीट कर रहे हो या कुछ भी डिसीजन ले रहे हो आप ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे। अकेला परफेक्शनिज्म रोल प्ले नहीं करता, उसके साथ आपकी अदर कंडीशन सच एज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस विल आल्सो प्ले अ रोल। सो हमेशा ही डिसीजन मेकिंग में परफेक्शनिज्म का ये नहीं होगा। यू कैन ऑल्सो यूज इन पॉजिटिव मैनर ऑल्सो। मैम अभी एक और मैम 2 मिनट रह गए हैं, फीडबैक फॉर्म का हम फिल करवा लेते हैं, अगर कोई क्वेरी होगी तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू कर लेंगे, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम जी। ओके सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर हरदीप कौर जी, मिस्टर राहुल वोरा जी। बहुत अच्छा रहा आज का जो ये वेबिनार है। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी पार्टिसिपेंट्स का। और विशेष तौर से हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है, इतना अच्छा टॉपिक दिया है जिसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा डेलिब्रेशंस की है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, अगर कोई क्वेरी अभी भी आपकी रह जाती है तो आप लोग को हमने फोन नंबर दिए हैं, तीनों दोनों रिसोर्स पर्सन के और मेरे भी हैं, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो उसके थ्रू भी आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।